Good morning to all of you. Myself Ekta Srivastav, PGT Psychology. Today we will be doing chapter 2, which is Self and Personality. This chapter is carried 10-point weightage from board point of view. Of then, you must have found yourself engaged in knowing your own behavior and others' behaviors also. You must have noticed how you react and behave in a certain situation in manner different from others. To find answer of this question, some of these questions, psychologists use the notion of self or concept of self. Similarly, when we answer the questions like such as why people are different and how they feel and react differently in similar situation, the notion of personality comes. So, both the terms are intimately related, and in fact, self lies at the core of personality. The study of self and personality helps us to understand not only who we are but also our uniquenesses as well as our similarities with others. So, you can see this is very interesting chapters. This chapter will introduce you to some basic aspects of self and personality. You will also learn some important theoretical approaches to self and personality and certain methods of personality assessment. So without wasting a time, look at the concept of self. Self is about the answer of the question, who am I? The image that I carried about myself is my concept of myself. A newly born child has no idea of itself. As a child grows older, the idea of self emerges and its formation begins. Parents, friends, and other significant persons play a vital role in shaping a child's ideas about self. So you can say from common observation, we can say that these ideas represent the self of a person. जब हम इंटरेक्ट करते हैं सिग्निफिकेंट पर्सनस लाइक हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारा पीयर, तो इस इंटरेक्शन के थ्रू जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और उसको जब जिस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको मीनिंग असाइन करते हैं अपने कॉग्निटिव लेवल पे, तो उससे हमारे सेल्फ का जो आइडिया होता है बेसिकली वो डेवलप होता है. सो वी कैन से कि इसी प्रोसेस के थ्रू अपने सेल्फ को समझते हैं, अपने सेल्फ को जानते हैं. सो ये आइडियाज़ हमारा किस तरह से डेवलप होते हैं अपने सेल्फ के बारे में, हाउ दिस आइडियाज़ आर बिगिन. So our interaction with other peoples, other significant peoples, our experiences and the mainly we give them मतलब meaning we give them serve as the basis of our self. तो उसी जो मीनिंग असाइन करते हैं उस एक्सपीरियंस के थ्रू, दिस इज नोन एज अवर सेल्फ. नाउ लुक एट द डेफिनेशन. Self refers to the totality of an individual's conscious experiences, ideas, thoughts, and feelings with regards to herself or himself. That's mean self totality यानी एक टोटल जिस्ट है हमारे टोटल कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस का, हमारे टोटल आइडियाज़ का, टोटल थॉट्स का, टोटल फीलिंग्स का. ये सारी चीज़ें दैट्स मीन हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस, आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स जब को रिलेटेड होके एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक टोटलिटी में कंसीडर होते हैं, तो दिस इज नोन एज अवर सेल्फ. नाउ लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक, द डुअल स्टेटस ऑफ सेल्फ. सो सेल्फ के बेसिकली टू स्टेट्स हैं या टू स्टेटस हैं, विच इज़ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सेल्फ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो देर आर टू टाइप्स, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट्स दैट्स मीन नोवर और एक्टर, जो एक्टिंग कर रहा है या जो कुछ वर्क कर रहा है, दिस इज अवर सब्जेक्ट. एंड ऑब्जेक्ट दैट्स मीन नोन, जो नोन पार्ट है हमारे सेल्फ का, जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो रिजल्ट आ रहा है उसका, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट क्या है? हु डज समथिंग, वो एक्टर, लाइक I am a dancer, I am a poet, I am a painter.
तो जो मैं कर रही हूँ, जो मेरा नोन पार्ट है, जिसके बारे में जान रही हूँ, दिस इज अवर सेल्फ और सब्जेक्टिव सेल्फ. एंड जो हमारा लेटर पार्ट है, आई एम वन हु ईजली गेट्स हर्ट्स. ठीक है, मैं अपने बारे में जो चीज़ें अभी थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ बट कंप्लीटली जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, दिस इज अवर लेटर पार्ट विच इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, so you can clearly understand the dual status of self, subject and object. Now our next topic is kinds of self, types of self or kinds of self. There are also two types, personal self and social, familiar or relational self. So personal self, that means personal self lie emphasis on those aspects of life that are only can to the person. ठीक है, जो पर्सनल फ्रीडम होता है या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पर्सनल अचीवमेंट है, यानी विच टाइप ऑफ सेल्फ जो कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल वैल्यूज़, पर्सनल नीड्स, पर्सनल मोटिवेशन से डिराइव हो रहा है, जो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे इम्फेसिस कर रहा है, दिस इज नोन एज अवर पर्सनल सेल्फ. एंड सेकेंड इज सोशल, फैमिलियर और रिलेशनल सेल्फ. वो क्या है? सोशल सेल्फ इमर्जेस इन रिलेशन विद अदर and emphasizes such aspects of life as cooperation, unity, affiliation, sacrifice, support, etc. दैट्स मीन सोशल, फैमिलियर और रिलेशनल सेल्फ तब होता है जब चाइल्ड धीरे धीरे ग्रो अप करता है और उसका इंटरेक्शन सोसाइटी की तरफ, अपने कल्चर की तरफ बढ़ता है. जैसे ही वो इंटरेक्ट करता है अपने सोसाइटी में और सोसाइटी के वैल्यूज़ जो हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स जो हैं, उसके अकॉर्डिंग जब उसका सेल्फ जो है वो मॉडिफाई होने लगता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द इन्वायरमेंट. तो दिस इज नोन एज अवर सोशल सेल्फ और सोशल और फैमिलियर रिलेशनल सेल्फ. ओके, आपके बुक में पहले ही एक पॉइंट दिया हुआ है, काइंड्स ऑफ आइडेंटिटी. इट इज़ सिमिलर लाइक काइंड्स ऑफ सेल्फ. ठीक है, जैसे काइंड्स ऑफ सेल्फ पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ में टू टाइप में डिवाइडेड है, एज इट इज़ काइंड्स ऑफ आइडेंटिटी भी टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज personal identity and second one is social identity. So personal identity refers to those attributes of a person that make her or him different from others, like your name. When you say I am एकता श्रीवास्तव, दैट्स मीन ये मेरी एक पर्सनल आइडेंटिटी है जो कि मुझे डिनोट करती है. पर्टिकुलरली अगर क्लास में किसी बच्चे का नाम लेके बुलाया जाएगा तो वो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है और जिससे वो जो कि रिप्रेजेंट करेगा उसके सेल्फ को. ठीक है, एज इट इज़ ही हमारा सोशल सेल्फ होता है, एज इट इज़ हमारा सोशल आइडेंटिटी है. सोशल आइडेंटिटी रिफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन दैट लिंक हर और हिम टू अ सोशल और कल्चरल ग्रुप. दैट्स मीन जब आपकी एक ब्रॉडर आइडेंटिटी निकल के आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ आई एम अ हिंदू, आई एम अ नॉर्थ इंडियन, तो ये जो आपका ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में आपकी जो आपके सेल्फ की जो आइडेंटिटी डिराइव हो रही है, दिस इज़ योर सोशल आइडेंटिटी. सोशली आप कहाँ से बिलोंग करते हो, यू आर अ नॉर्थ इंडियन और यू आर अ साउथ इंडियन, यू आर अ यू आर अ हिंदू और यू आर अ मुस्लिम. तो ये जो कम्युनिटी है, जो आपका कल्चर है, यू आर अ ट्राइबल और जो भी है, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बेसिकली ये आपकी सोशल आइडेंटिटी है. ओके, तो आई होप you will understand. Now our next topic is cognitive and behavioral aspects of self. कॉग्निटिव दैट्स मीन जो आपके थॉट से और आपके कॉग्निशन से रिलेटेड है, एंड बिहेवियर जो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से आपके बिहेवियर से शो हो रहे हैं, दैट्स एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ. एक बहुत ही फेमस ग्रेट साइकोलॉजिस्ट और एक बहुत बिहेवियरिस्ट जो हैं, एल्बर्ट बैंडुरा वॉज गिव दिस कॉन्सेप्ट. सो इन कॉग्निटिव एस्पेक्ट देयर आर two types, self concept and self esteem, and in behavioral aspect there is self efficacy and self regulation. Now first of all we will discuss cognitive aspect. Now what is self concept? So self concept is the way perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes. A person's self-concept can be found out by asking the persons about himself or herself. Self-concept is either negative or positive, both. It's about our weaknesses or strength. Knowing about her or himself is our self-concept.
सो बेसिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट योर ओन सेल्फ, information about your weaknesses, your strength, your nature, your personality, whatever you know about yourself, this is your self concept. ठीक है, इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन सेल्फ कॉन्सेप्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जान रहे हो कि आई एम अ गुड पोएट, सो दिस इज़ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट अबाउट योर सेल्फ. एंड इफ़ यू नो आई एम वेरी वीक इन मैथ्स, तो ये भी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है. एक पॉजिटिव वे था, एक आपका निगेटिव है. आप क्या कर सकते हो, आपके पोटेंशियल, आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिटीज़ और आपके बैड हैबिट्स, ऑल अबाउट योर सेल्फ कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ स्टीम. अब सेल्फ स्टीम किस तरह से डिफरेंट है फ्रॉम सेल्फ कॉन्सेप्ट? सो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अबाउट अ टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, एंड सेल्फ स्टीम जब आपको वो इन्फॉर्मेशन पता होती है तो उस इन्फॉर्मेशन को जब आप इवेलुएट करते हो, जज करते हो और कंपेयर करते हो अपने पीयर ग्रुप से या अपने अदर जो आपके एज ग्रुप के पर्सन्स हैं उनसे, जब आप कंपेयर करते हो और उस कंपैरिजन के थ्रू जब आप असेस कर पाते हो कि वो वैल्यूएबल है कि नहीं, वो जो जजमेंट निकल के आता है, दिस इज़ योर सेल्फ स्टीम. स्टीम्स मीन्स वेटेज, मीन्स वैल्यू, मीन्स इम्पॉर्टेंस जो आप दे रहे हो अपने पर्सन को, अपने सेल्फ को. सो सेल्फ स्टीम इज़ द वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन्स अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ. The worthiness, the weightage of ourself is in comparison to other is known as our self-esteem. So, when you are asking a question like, what do I value myself? Am I capable? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हम अपने सेल्फ से करते हैं, अपने आप को जज करते हैं, दिस इज़ अवर सेल्फ स्टीम. और ये कैसे डेवलप होती है? इट्स डेवलप इन बेसिकली इन 4 एरियाज. ये बेसिकली 4 एरियाज में डेवलप होती है इन द एज ऑफ 6 और 7 ईयर. 6 और 7 ईयर यानी अर्ली चाइल्डहुड, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये इसका डेवलपमेंट इन 4 एरियाज में. दीज 4 एरियाज आर एकेडमिक कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, फिजिकल अपीयरेंस एंड फिजिकल कॉम्पिटेंस. सो एकेडमिक कॉम्पिटेंस दैट मीन आपका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है. आप अगर अपने पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, जो आपका टेस्ट में स्कोर है, जो आपको असाइनमेंट मिल रहा है, वो विद इन अ टाइम आप कर पा रहे हो कि नहीं, उसके लिए आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है या क्रिटिसिज्म मिल रहा है. सो ये सारी चीज़ें वैल्यू करती हैं आपके एकेडमिक कॉम्पिटेंस में. तो ये अगर हाई लेवल का है तो सेल्फ स्टीम हाई होगी, अगर लो लेवल का है तो दैट्स मीन सेल्फ स्टीम लो होगी. सेकेंड वन इज सोशल कॉम्पिटेंस. सो सोशल कॉम्पिटेंस दैट मीन्स सोशल रिलेशनशिप, जो किनशिप डेवलप करते हैं हम हमारे पीयर्स से, अपने रिलेटिव से, अपने नेबर्स से, जो एक सोशल रिलेशनशिप होती है, सोशल वैल्यूज़ जो होती है, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमारा जो बिहेवियर है, मॉरलिटी है, ये सारी चीज़ें जो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. तो ये सारी चीज़ें आपकी कैसी हैं, तो वो होता है हमारा सोशल कॉम्पिटेंस. सोसाइटी में आप किस तरह से एग्जिस्ट कर पा रहे हो, रिलेशनशिप किस तरह से मेंटेन कर पा रहे हो, फ्रेंड्स बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, रिलेशनशिप आपकी किसकी क्वालिटी कैसी आ रही है, वो आपका सोशल कॉम्पिटेंस है. तो वो अगर हाई है तो सेल्फ स्टीम हाई होगी. नाउ फिजिकल अपीयरेंस. फिजिकल अपीयरेंस दैट मीन आप लुक्स वाइज फिजिकली आप किस तरह से लगते हो, आपके पीयर ग्रुप और आपके कंपैरेटिव ग्रुप में आपकी जो इमेज है, फिजिकल इमेज जो है वो किस तरह की है, इज़ इट वैल्यूएबल और नॉट. तो ये आपका डिसाइड करेगा आपके सेल्फ स्टीम को डेवलप करने में. Now last one is physical competence. Physical competence which is related to like our sports, our physical strength. आपके अंदर स्टेमिना क्या है, स्ट्रेंथ क्या है. बेसिकली ये चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में स्पोर्ट्स में देखा जाता है कि आपका फिजिकल कॉम्पिटेंस कितना है, आपके अंदर फाइटिंग एबिलिटी कितनी है, आप कितना अच्छे से प्ले में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे हो और कितना अच्छे से उसे कर पा रहे हो. तो दिस इज़ योर फिजिकल कॉम्पिटेंस. सो बेसिकली सेल्फ स्टीम आपका वैल्यू जजमेंट है अपने सेल्फ के बारे में, और ये इन डिफरेंट 4 एरियाज यानी अकेडमिक कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, फिजिकल अपीयरेंस एंड फिजिकल कॉम्पिटेंस के थ्रू डेवलप होता है इन द एज ऑफ 6 to 7 ईयर. नाउ स्टडीज़ एंड रिसर्चेस जो बताती हैं इस फील्ड में इन सेल्फ स्टीम, पेरेंटिंग प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग ऑफ सेल्फ स्टीम. पेरेंट्स जो होते हैं उनकी पेरेंटिंग का जो स्टाइल है, हमारा पेरेंटिंग स्किल है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है सेल्फ स्टीम के डेवलपमेंट में.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चाइल्ड है और पेरेंट्स उसके जो हैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं, उसको हर समय कमेंट करते हैं और उसको सेल्फ डिपेंडली कुछ भी करने नहीं देते, हर चीज़ में रोक टोक और हर चीज़ में ये सारी चीज़ें करते हैं, तो नो डाउट इंटेंशन जो होगा पेरेंट्स का वो राइट होगा, बट क्योंकि उनके पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, दे डोंट नो अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, सो उनका जो इंटेंशन है इट वाज गुड, बट इसका इम्पैक्ट जो होता है चाइल्ड में, चाइल्ड के डेवलपमेंट का ये एक नेचुरल स्टाइल नहीं है, तो उसको जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, बहुत ज़्यादा कमेंट किया जाएगा, तो होता क्या है कि उसके डेवलपमेंट पे निगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है, उसके सोशल स्टीम सेल्फ स्टीम के डेवलपमेंट में एक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इफ़ पेरेंट सेज यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो उसका क्या होता है, उसकी जो साइकोलॉजी होती है, उसके थॉट्स, उसके कॉग्निशन में वो सोचता है कि येस मे बी मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं तो वो राइट होंगे और मैं रॉन्ग होंगे, अगर वो कह रहे हैं कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग तो मे बी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, तो मैं नहीं कर सकता, तो ये जो चीज़ें होती है ये उसके थॉट में बिल्कुल इंटैक्ट हो जाती है कि नहीं यही पेरेंट्स जो कह रहे हैं वही सही है, तो ये क्या होता है कि बहुत बैडली इफेक्ट करता है हमारे सेल्फ स्टीम को डेवलप करने में। तो जो ये चाइल्ड जो होगा वो बिलीव करने लगेगा कि हमारे जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो ये इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स कभी भी पेरेंट्स को नहीं करने चाहिए। सो दिस इज़ तो इस तरह से पेरेंटिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सेल्फ स्टीम के डेवलपमेंट में। Now move to the next topic, behavioral aspect. Behavioral aspects subtopics are self-efficacy and self-regulation. So first of all, self-efficacy. Self-efficacy is the extent to which a person believes they themselves control their life outcomes, and person who believe that she or he has the ability or behavior required by a particular situation. डिमोस्ट्रेट हाई सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, दैट्स मीन सेल्फ एफिकेसी क्या है, अपने लाइफ को कंट्रोल करने का जो पावर है, जो क्या कह सकते हैं पावर यू कैन से, तो वो जो है वो या आप अपने एक्सटर्नल अपने आपको कंट्रोल करने का पावर दे रहे हो या एक्सटर्नल चीज़ों में दे रहे हो, तो इंटरनली या तो आपके पास कंट्रोल है अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का, लाइफ आउटकम्स को कंट्रोल करने का, या फिर आप एक्सटर्नली उसे ब्लेम कर रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल डेस्टिनी, गॉड एंड ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं। तो सेल्फ एफिकेसी दैट्स मीन विल पावर, जिसे हम कह सकते हैं ब्रेन पावर या विल पावर, जिसे मन की शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये जो विल पावर होता है दिस इज़ नोन एज अवर सेल्फ एफिकेसी, जहाँ पे हम बिलीव करते हैं कि हमारी जो पोटेंशियल है, हमारे पास जो स्किल है या जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है हमारे पास, जो भी स्टोर्ड रिसोर्सेज है और जो भी सिचुएशन को रिक्वायर्ड है उससे वो मैच कर रहा है, और हम उस सिचुएशन से डील करने के लिए सफिशिएंट है, या उस सिचुएशन से डील कर पाने के लिए हमारे पास सफिशिएंट पोटेंशियल है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। तो ये जो हमारा बिलीव होता है अपने अबाउट अवर सेल्फ, दिस इज नोन एज अवर सेल्फ एफिकेसी। एंड सेल्फ रेगुलेशन क्या है, अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि एम आई एबल, एम आई कैपेबल, हमारे पास क्या पोटेंशियल है, हमारे पास क्या सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, क्या हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कंसिडर इन अ सेल्फ रेगुलेशन। सो सेल्फ रेगुलेशन क्या है, टू रेगुलेट माई ओन बिहेवियर। Yes, by self-regulations refers to our ability to organize and monitor our own behavior. ठीक है, पीपल अपने खुद के बिहेवियर को जब ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, मॉनिटर कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसे चेंज कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द सिचुएशन, दिस इज़ अवर सेल्फ रेगुलेशन। अपने सेल्फ को, सेल्फ कॉन्सेप्ट को के इन्फॉर्मेशन के बाद जब आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उसे रेगुलेट कर पा रहे हो, अपने सेल्फ को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर पा रहे हो अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द इन्वायरमेंट, दिस इज़ अवर सेल्फ रेगुलेशन। So, we can regulate ourselves by 4 techniques, which are self-control, self-instruction, self-reinforcement, and observation of own behavior. So, first one is self-control. Self-control plays a key role in the fulfillment of long-term goals. Learning to delay or defer the gratification of needs is called self-control. I had taught you about needs
in class 11th. So there are two type of need, physical and psychological, and learn to delay gratification of need is called self control. Okay, we can control ourselves by observation of own behavior, self instruction and self reinforcement. So observation of own behavior क्या है? It's provide necessary information that may be used to change, modify और strengthen certain aspects of self. यानी ऑब्जर्व करना अपने सेल्फ को और उसके थ्रू अपने अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द इन्वायरमेंट उसे चेंज करना, मॉडिफाई करना और किसी एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ को स्ट्रेंथन करना. इट इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्फ. ठीक है. सेकेंड इज सेल्फ इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्ट आवर सेल्फ टू डू समथिंग एंड बिहेव द वे वी वॉन्ट टू. तो सेल्फ से आप लोग अक्सर नोटिस करोगे कि हमारा सेल्फ कम्युनिकेशन चलता है. हम अपने आप से कभी कभी बातें करते हैं, तो दिस इज़ अवर सेल्फ इंस्ट्रक्शन. हम खुद को इंस्ट्रक्ट करते हैं और इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हमारा विल पावर कमज़ोर होने लगता है तो हम खुद को कहते हैं कि नो, यू कैन नॉट लूज़ योर होप. आप अपने होप को नहीं लूज़ कर सकते, आपको स्ट्रॉन्ग दिखना है. अपने कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस फील करते हैं और उसे हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. तो इस इमोशन और इस मोटिवेशन को जब हम कंट्रोल करते हैं, उसे अपने आप से कन्विंसेट करते हैं, अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हैं, दिस इज़ अवर सेल्फ इंस्ट्रक्शन. सो सेल्फ इंस्ट्रक्शन दैट्स मीन इंस्ट्रक्ट आवर सेल्फ टू डू समथिंग एंड बिहेव द वे वी वॉन्ट टू. जिस वे में हम बिहेव करना चाहते हैं उसके लिए अपने आप को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है बहुत सारे लोग फास्ट रहते हैं, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन. हम अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आज आपको भूख नहीं लग सकती, आपको कंट्रोल करना है अपने हंगर को. हंगर क्या, इट इज़ अ काइंड ऑफ नीड विच इज़ डिराइव फ्रॉम अ मोटिवेशन. तो उसे हम जब कंट्रोल कर रहे हैं तो दिस इज़ अवर सेल्फ इंस्ट्रक्शन. लास्ट वन इज सेल्फ रीइंफोर्समेंट. सेल्फ रीइंफोर्समेंट क्या है? रिवॉर्ड बिहेवियर्स दैट हैव प्लेजेंट आउटकम. जब आप कोई टारगेट सेट करते हो, अपना गोल सेट करते हो और जब आप उसे अचीव कर लेते हो तो खुद को एक रिवॉर्ड देते हो, एक प्लेजेंट रिवॉर्ड देते हो अपने आप को प्रेज करने के लिए. तो दिस इज़ योर सेल्फ रीइंफोर्समेंट. सपोज आपने डिसाइड किया कि आज आपको इस चैप्टर का ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना या ये चैप्टर कंप्लीट करना है. एग्जाम टाइम में आप बहुत सारे ऐसे गोल्स बनाते हो, शॉर्ट गोल्स बनाते हो, और उससे जब आप अचीव कर लेते हो तो आपको खुद को कुछ प्राइज़ देना होता है. आपके सेल्फ को मोटिवेट करने के लिए, खुद को जो है कि और अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए आप उसे रीइंफोर्स करते हो. तो दिस इज़ योर सेल्फ रीइंफोर्समेंट. फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे एक दिन का फास्ट रखा और वो कम्प्लीटली अच्छे से हो गया, तो नेक्स्ट डे आप अपने आप को कुछ डिलीशियस सा डिश बना के अपने आप को रीइंफोर्स कर रहे हो. तो दिस इज़ योर सेल्फ रीइंफोर्समेंट. सो बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन दैट्स मीन रेगुलेट अवर ओन सेल्फ, और उसकी 4 टेक्निक्स है: ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ रीइंफोर्समेंट एंड सेल्फ कंट्रोल. बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन होता है थ्रू सेल्फ कंट्रोल, एंड देयर आर 3 टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल. ये जो 3 बिलोज टेक्निक है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ रीइंफोर्समेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, दिस इज इंक्लूडेड इन सेल्फ कंट्रोल, एंड सेल्फ कंट्रोल इज द की टर्म फॉर सेल्फ रेगुलेशन. अंडरस्टैंड? Now move to the next subtopic, which is culture and self. So टॉपिक सही समझ में आ रहा है. देयर इज कल्चर ऑल्सो एंड सेल्फ ऑल्सो. यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ. नाउ वी विल बी अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सेल्फ. जब सेल्फ डेवलप होता है, सेल्फ का आइडियाज़ डेवलप होता है, उसमें कल्चर किस तरह से रोल प्ले करता है, कल्चर किस तरह से एक बैकग्राउंड, एक बेस देता है हमारे सेल्फ को डेवलप होने के लिए. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, so there is 2 type of culture: Indian perspective or Indian culture, or Western perspective or Western culture. So culture plays a important role in development of self. Analysis of self carried out in the Indian culture, cultural context reveal a number of important features that are distinct from those found in the Western cultural context. ठीक है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंडियन एंड द वेस्टर्न व्यू इज द वे द बाउंड्री इज द ड्रॉन बिटवीन द सेल्फ एंड द अदर्स. यानी इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में बेसिक एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है?
वो जो बाउंड्रीज जो ड्रॉ करते हैं हम बिटवीन सेल्फ एंड अदर पर्सन, ये जो बाउंड्रीज हम बताते हैं ये इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में बिल्कुल ही अलग अलग है। इंडियन कल्चर जो है वो बेसिकली एक फ्लेक्सिबल कल्चर है, यहाँ पे जो सेल्फ की बाउंड्रीज है वो बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफाइंड नहीं है, जबकि जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे सेल्फ की बाउंड्रीज बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट और वेल डिफाइंड है, सेल्फ अलग है और अदर पीपल अलग हैं। जबकि इंडियन कल्चर जो है, इंडियन कल्चर में सेल्फ इंक्लूडेड इन आवर सोसाइटी, मतलब हमारे जो हमारी फैमिली है, हमारी सोसाइटी है, वो भी हमारे सेल्फ के अंदर इंक्लूडेड है। हम सेल्फ और अदर्स पीपल्स का बहुत क्लियरली दोनों को अलग अलग नहीं डिफाइन करते हैं। सो इन द वेस्टर्न व्यू this boundary appears to be relatively fixed, and the Indian view of self on the other hand is characterized by the shifting nature of this boundary। ठीक है, जो नेचर है ये शिफ्टिंग नेचर है, हमारी बाउंड्रीज जो है इंडिविजुअल एंड ग्रुप या इंडिविजुअल सोसाइटी और इंडिविजुअल्स और पीपल्स के बीच ये जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड, वेल क्लियरली नहीं है, बल्कि ये एक एम्बिगुअसी सिचुएशन रहती है, हम शिफ्ट करते रहते हैं बाउंड्रीज को। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है जो जो कि क्लियरली हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, विच इज़ हमारा जो व्यू है, जो इंडियन व्यू है इट इज़ कलेक्टिविस्ट कल्चर है, और जो हमारा वेस्टर्न व्यू है वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है। यानी जो वेस्टर्न व्यू है वो इंडिविजुअल को फोकस करता है, और जो इंडियन व्यू है वो हमारा कलेक्टिव व्यू है, वो लेके पूरी सोसाइटी को चलता है, वो एक साथ सोसाइटी को लेके चलने में बिलीव करता है। सो कलेक्टिविस्टिक कल्चर जो कि इंडियन कल्चर है वो क्या कह रहा है, सेल्फ इज जनरली नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वंस ओन ग्रुप, रादर बोथ रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ होम्योजीनियस को एग्जिस्टेंस। यानी जो हमारा जो इंडियन व्यू है, हमारा जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर है वो कहता है कि जो सेल्फ है वो सेपरेट नहीं होता, कभी भी हमारे ग्रुप से, हमारी सोसाइटी से, अदर पीपल से वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होता, बल्कि वो दोनों को एग्जिस्टेंस साथ साथ में एग्जिस्ट करते हैं और एक साथ होम्योजेनियस रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए आगे चलते हैं, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें नहीं आती हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव वे में वर्क करते हैं। ठीक है, जबकि वेस्टर्न व्यू क्या कहता है, जो कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, इट इज़ सेल्फ एंड द ग्रुप एग्जिस्ट एज टू डिफरेंट एंटाइटीज विथ clear and defined boundaries. Individuals members of the group maintain their individuality। ठीक है, जो वेस्टर्न व्यू है वो कहता है सेल्फ जो है और ग्रुप जो है वो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, एक डिफरेंट एंटाइटी है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, और उनकी जो बीच में जो एक बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड है, क्लियरली डिफाइंड है, और इंडिविजुअल जो मेंबर होता है वो अपने आइडेंटिटी को, अपने इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, इन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर या वेस्टर्न कल्चर। सो यू कैन सी कि कल्चर किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेल्फ के डेवलपमेंट में और हमारे सेल्फ के एग्जिस्टेंस में। सो आई थिंक अवर टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड नाउ। एक शॉर्ट सा क्विक रिवीजन, अभी तक हमने क्या क्या डिस्क्राइब किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन किया जिसमें हमने सेल्फ एंड पर्सनैलिटी दोनों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया। आफ्टर दैट डेफिनेशन ऑफ सेल्फ, ठीक है, और उसके बाद डुअल स्टेटस ऑफ सेल्फ जो कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, सब्जेक्टिव व्यू दैट्स मीन हमारा जो इंडिविजुअल का जो नोन पार्ट है, जो एक्टर पार्ट है, और ऑब्जेक्टिव व्यू दैट्स मीन हमारा जो कॉन्सिक्वेंसेस है। आफ्टर दैट काइंड्स ऑफ सेल्फ जिसमें दो थे, पर्सनल सेल्फ एंड सोशल या फैमिलियर सेल्फ। इसके बाद हमारा जो आइडेंटिटी था वो भी दो था, पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी। आफ्टर डेट हमारा कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, जिसमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट में था सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ इस्टीम, और बिहेवियरल एस्पेक्ट में सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ रेगुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कि ये बोथ कॉन्सेप्ट आर गिवन बाय एल्बर्ट बेंड्यूरा जो कि एक बहुत बड़े बिहेवियरिस्टिक थे। उनकी सोशल लर्निंग थ्योरीज जो थी उससे डिराइव हुआ है ये सारा कॉन्सेप्ट। आफ्टर डेट हमने पढ़ा सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन की 4 टेक्निक्स विच इज़ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन एंड सेल्फ रीइंफोर्समेंट।
और आफ्टर दैट कल्चर एंड सेल्फ, जिसमें इंडियन पर्सपेक्टिव एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को हमने कंपेयर किया ऑन 2 पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज जहाँ पे हमने बाउंड्रीज के बेसिस पे इन दोनों को असेस किया कि किस तरह से सेल्फ और अदर्स के बीच में जो बाउंड्रीज है वो इंडियन कल्चर में कैसी है और वेस्टर्न कल्चर में कैसी है. दूसरा हमारा कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, यानी इंडियन कल्चर, एंड वेस्टर्न कल्चर जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है. ओके, नाउ दिस टाइम फॉर होमवर्क. तो होमवर्क में आपके बुक में एक्टिविटी 2.4 जो है यू हैव टू डन. ठीक है, आपको उसे डन करना है. ओके क्लास, थैंक यू.